Your topic is circle. Few concepts related to circles and very important definitions have to be remembered. First is the definition of circle. A circle is a path traced by a point in a plane in such a way that its distance from a given fixed point in a plane is always constant. Means this is a fixed point you may take, and this is a path in such a way that its distance from this fixed point is always constant. This is constant. Constant means OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD. This is a path traced by a point in a plane. Board is your plane. So this is called circle. This fixed point O is called center, and this constant distance is called radius of the circle. So this is the definition. There is one more definition that we will discuss in the next videos. But this is the main definition. The circle is a path. This path, this round shaped path, traced by a point in a plane such that its distance from the fixed point is always constant in a plane. The fixed point is called center, the constant distance is called radius. Means OA is the radius and O is the center. Next definitions related to the circle. First is radius. A line segment joining the center and a point on the circle. Center and कोई भी आप एक point ले सकते हैं circle के ऊपर, any point you can take. If we join this line segment, this is called radius. And the plural of the radius is called radii, R-A-D-I-I. Next is a chord. A line segment joining any 2 points on the circle. Any 2 points mean this is the point you may take. This point is taken as P and this is taken as Q. So this line segment is called chord. The line segment joining any 2 points on the circle is called chord. C-H-O-R-D. Next definition is the diameter. A diameter is a chord which passes through the center of the circle, and diameter is the longest chord of the circle. This is called as diameter, and this is the longest chord, may be named as X, Y. This is also called as diameter. Any chord which passes through the center of the circle is called diameter. Next is interior of a circle. दोबारा फिगर्स बना लेते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल्स में. दिस इज ए सर्कल्स. The region consisting of all points lying inside and on the circumference of the circles. या तो यहाँ पे लाई करें या सर्कमफ्रेंस पे लाई करें तो हम उसको इंटीरियर कहेंगे. कोई भी पॉइंट्स. और एक्सटीरियर में उल्टा हो जाएगा. ये सर्कल्स है और जो पॉइंट बाहर लाई करेंगे, ऑन भी लाई नहीं करेगा. ऑन वाला पॉइंट हमने इंटीरियर में लिया. इसमें ओनली क्या था, आउटसाइड द सर्कल्स. नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक, CONCENTRIC.
सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। इसकी फिगर ऐसे होती है, सेम सेंटर था बट रेडियाई सबकी, मान लो इसकी रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, ये रेडियस r3 है। सेम सेंटर बट डिफरेंस ऑफ रेडियस। OA, दिस इज OB, दिस इज OC। ये डेफिनेशंस आप जितना बेटर लर्न करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। 9, 10 दोनों ही क्लासेस के लिए वैलिड है। आर का फिर सर्कल, आर का फिर सर्कल अब थोड़ा टेक्निकली आ गए। जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं तो ये चीजें काफी काम आती हैं। A piece of circle between 2 points is called arc of a circle। मीन्स ये कोई सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है, ये A ले लिया, ये B ले लिया, तो A भी एक पीस हो गया। तो दिस वन पीस इज कॉल्ड आर्क ऑफ ए सर्कल। इसको आप ऐसे लिखते हैं ए बी, इसको फिर ऐसे डाल देते हैं आर्क ऑफ ए सर्कल। छोटा पीस है तो माइनर आर्क कहलाती है, बड़ा पीस है तो मेजर आर्क कहलाती है। इज इट क्लियर? मान लो इसी में हमने यहां पे कोई पॉइंट सी ले लेते हैं। जब मेजर आर्क लिखनी होती है तो मेजर आर्क हम ए सी बी लिख देते हैं ताकि हमें ट्रेस पता लग जाए। हम ये वाली आर्क ले रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज मेजर आर्क। जो मैंने ग्रीन वाली लिखी है इसको ऐसे है। तो जब हम ए सी बी लिखते हैं तो मेजर एंड माइनर आर्क हमारी एकदम क्लियर हो जाती है। जो लॉन्गेस्ट आर्क है उसको मेजर आर्क कहते हैं। मेजर आर्क में एक पॉइंट बीच में दूर लेते हैं। अगर 3 अल्फाबेट से लिखना है तो मेजर आर्क है, 2 से लिखना है तो माइनर आर्क। ये डिफरेंस आप नोट कर। माइनर आर्क में 2 अल्फाबेट आएंगे, मेजर आर्क में 3 आएंगे। पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स को आप मेजर एंड माइनर आर्क के नाम से जानेंगे, क्योंकि आर्क वर्ड जब भी सर्कल पे आ जाए तो दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। अगर जो ये क्लियर नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे। आगे डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, मतलब जो आर्क आपने ली है इसको एंगल की टर्म्स में कैसे मेजर करना है। क्लियर? कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, तो मैंने क्या लिखा है? डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज द मेजर ऑफ द एंगल made by 2 end point of the arc with the center। means ये तो 2 एंड पॉइंट थे आर्क के और ये सेंटर था। ये जो एंगल होगा ये डिग्री मेजर ऑफ द आर्क होगा। इसको हम लिखते भी ऐसे ही हैं, डिग्री मेजर ऑफ आर्क का सिंबल ए बी है इज इक्वल टू थीटा। डिग्री मेजर आर्क का सिंबल ए बी है। अगर मैं वही 3 वाली आर्क लिख दूं ए सी बी तो ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। तो डिग्री मेजर दोनों का हो सकता है, माइनर का भी और मेजर का। वैसे इसका सिंबल हम ज्यादातर ये भी यूज करते हैं, एम ब्रैकेट में आर के बी इज इक्वल टू थीटा। एम जो है वो सिंबल है डिग्री मेजर का, डिनोटेड बाय दिस। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज द मेजर ऑफ द एंगल मेड बाय 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क एंड विद द सेंटर। मतलब जो एंड पॉइंट ऑफ द आर्क है उसको सेंटर से ज्वाइन करेगा तो ये एंगल आप थीटा। तो आई होप डिग्री मेजर क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज
semicircle. A diameter of the circle, divide it into two arcs. Each arc is called semicircle. अब तो पॉइंट क्लियर हो गया, ये सर्कल्स है, ये इसका डायमीटर हो गया क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास करता है, तो ये जो आर्क रहेगी ये सेमी सर्कल कहलाएगा। Segment of a circle. A segment of a circle is the region between chord and an arc of a circle. देखिए ध्यान से, ये आपने chord ले ली, ये आपका रीजन का मतलब ये सारा एरिया रहेगा, ये आपका सेगमेंट कहलाएगा। अब नेचुरली सेगमेंट भी दो हो जाएंगे, एक मेजर सेगमेंट एंड सेकंड इज योर माइनर सेगमेंट्स। बस आपको सेगमेंट वर्ड से ध्यान में रखना है कि ये कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल है, ए बी कॉर्ड है और ये आर्क ऑफ द सर्कल, नीचे वाला माइनर है, ऊपर वाला मेजर है। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई। देखो ये आर्क ए बी है, ये दो रेडियाइज होगी, इसके बीच का जो रीजन है ये सेक्टर कहलाएगा। यहां पे भी दो ही बातें हैं, माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। कम वाला एरिया आपका माइनर है, बड़े वाला एरिया आपका मेजर है। जो ब्लू पार्ट से मैंने शो किया ये माइनर सेक्टर है, and this one is your major. एक माइनर है और एक मेजर सेक्टर। सेक्टर ऑफ द सर्कल्स, डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। सेगमेंट्स में कोड बाउंडेड है, सेक्टर में रेडियाई। कॉन्ग्रुएंट आर्क, two arcs are congruent if they have same degree measure. डिग्री मेजर का मतलब यही ऊपर वाले डेफिनेशन, मतलब एक सर्कल्स में भी हो सकते हैं, अलग अलग सर्कल में भी हो सकते हैं। सपोज करो ए बी है, इसका डिग्री मेजर सपोज करो 60 डिग्री है, ये एक आर्क होगी। दूसरी आर्क आपने बीसी ले ली, इसका भी मेजर 60 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों आर्क ए बी एंड बीसी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो डिग्री मेजर का मतलब क्लियर होना चाहिए कि जो एंगल मेड बाय द टू एंड पॉइंट ऑफ आर्क विद द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। मींस दो सर्कल जिनकी रेडियस इक्वल होती है हम उनको कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एंड ए पॉइंट्स। देखिए इसमें तीन सिचुएशन हो सकती हैं। ये कोड ए बी है, एक बार पॉइंट पी यहां पे हो सकता है, ये दूसरा सर्कल है, ये कोड ए बी है, एक बार पॉइंट यहां पे हो सकता है माइनर सेगमेंट में, एक बार ये कोड ए बी है, ये सबटेंडेड एट द सेंटर भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। पहले केस में एंगल ए पी बी, मीन मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इज द एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एट ए पॉइंट P on major arc.
सेकंड फिगर में एंगल ए क्यू बी इज सबटेंडेड बाय chord AB at Q on minor arc. Third case, angle AOB is the angle subtended by the chord AB at the center of the circle, at O, the center of the circle. इन चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर पढ़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी। नेक्स्ट, exercise 10.1, fill in the blanks, only 2 questions. I hope you can easily solve. First, at the center of the circle lies in interior of the circle. पहले क्वेश्चन में इंटीरियर की डेफिनेशन से क्लियर है। A point whose distance from the center of the circle is greater than radius will be on exterior. मतलब ये है, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब ये पॉइंट बाहर लाई करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर जो इक्वल होता तब भी हम इनसाइड कहते हैं, छोटा होता तब भी इनसाइड कहते हैं। तो ये डिस्टेंस आपने ऐसे फिगर से ऑब्जर्व कर लेना। ये सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी। थर्ड, लॉन्गेस्ट chord of the circle is diameter. An arc is a dash when its end point or on the diameter semicircle. एक आर्क को आप सेमी सर्कल कहते हैं, वो भी मैंने डेफिनेशन में कवर कर दी। Segment of the circle is the region between an arc and chord of the circles. A circle divides the plane on which it lie in 3 points. एक सर्कल जो है 3 पार्ट में लाई कर देते हैं। When the point lies on the circle, inside the circle and outside the circle. पहला पार्ट होता है inside, दूसरा outside, third is on. Second question, true false है। Line segment joining the center at any point of the circle is called radius. ये definition of radius है, true कहेंगे। A circle has finite number of equal chords, ये false कहेंगे because infinite हो सकती है। A circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc, false है, minor आएंगी। A chord is a circle, क्योंकि जब आप सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये सारे आपकी, क्योंकि मेजर आर्क तभी बनती है when the angle is 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे बेसिकली 180 से बड़ा कोई एंगल बनेगा तो मेजर आर्क बनेगा, तो वो माइनस ही रहेगी। इसमें फॉल्स कहना चाहिए। सेकंड के थर्ड पार्ट की बात हो रही है। A circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc, false कहूंगा। A chord is a circle which is twice as long as its radius, true कहेंगे because diameter की definition है। Sector is a region between chord and cross segment होता है, ये भी false रहेंगे। A circle is a plane figure, this is called true. So this is all about your exercise 10.1, but in this video the important is the definitions and the concepts। जितनी definitions आप quickly learn करेंगे उतनी remaining exercises आपको clear रहेंगे।
All these 14 definitions should be remembered.